जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? ए ऑप्शन आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 25 और डी आर्टिकल 29। करेक्ट आंसर है बी, दैट इज आर्टिकल 21, यानी one's right to marries the person of one's choices under the article 21. Next question है, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? A. First Administrative Reform Commission 1966, B. Rajmannar Committee 1969, C. Sarkaria Commission 1983 और D. National Commission to Review the Working of the Constitution 2000। सो करेक्ट आंसर है आपका सी, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के द्वारा ही ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो गवर्नर हैं आपके यानी राज्यपाल हैं वो आपके उस राज्य के बाहर से लिए जाने चाहिए और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल का जब राज्यपाल काफ़ी चर्चा में रहता है हर साल ही, क्योंकि इसकी निष्पक्षता को लेकर हमेशा संशय बनी रहती है और जिसके लेकर वेरियस कमीशन ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी है, परंतु अभी तक इन पे बहुत अधिक तक काम नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? A. Certificate of deposit, B. Commercial paper, C. Promissory note, D. Participatory note. The correct answer is D, जिन्हें आप P note के नाम से भी जानते हैं। तो correct answer will be participatory notes. Next question है, the term intended nationally determined contributions is sometimes seen in news in the context of A. Pledges made by the European Union countries to rehabilitate refugees from the war affected Middle East, B. Plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change, C. Capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Bank, or D. Plan of action outlined by the कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, जो आपके इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आपके क्लाइमेट चेंज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? ए. स्वप्नवास वदत्ता, बी. मालविका अग्निमित्रा, सी. मेघदूता, डी. रत्नावली। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज मालविका अग्निका मित्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम फाइंड द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज? ए. डब्ल्यूटीओ अफेयर्स, बी. सार्क अफेयर्स, सी. यूएनएफ ट्रिपल सी अफेयर्स और डी. इंडियन यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन और एफटीए। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डब्ल्यूटीओ अफेयर्स। Next question is, which of the following best describe the term import cover sometimes seen in the news? It is the ratio of value of imports to the GDP of a country. B. It is the total value of import of a country in a year. C. It is the ratio between the value of export and that of import between two countries. Or D. It is the number of months of import that could be paid for by a country's international reserve. So correct answer is D. Next question है, Mission Indradhanush launched by the government of India pertains to A. Immunization of children and pregnant women, B. Construction of smart cities across the country, C. India's own search for the Earth-like planets in our space, or D. New education policy. तो correct answer है इसका A, that is इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
All right, so you must have look at this new education policy. Next question है, India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? A. OECD यानी Organization for Economic Cooperation and Development, B. World Economic Forum, C. World Bank और D. WTO यानी World Trade Organization. तो करेक्ट आंसर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है. ठीक है, सी वुड बी करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ए एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बी होम रूल मूवमेंट, सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और डी विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया. तो करेक्ट आंसर वुड बी ए, स्वदेशी और बॉयकॉट आपका मेथड ऑफ स्ट्रगल था फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. अगर हम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की बात करें, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट की, तो बेसिकली इसका, जैसे कि क्वेश्चन में आपका गिवन है कि इसका ये आंदोलन इसलिए लागू किया गया था या इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था. ठीक है, या बंग भंग का ही एक रिजल्ट था. दिसंबर 1903 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी. ठीक है, और इसके पीछे गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया था कि बंगाल की आबादी बहुत ज़्यादा होने के कारण बंगाल का प्रशासन जो है ठीक तरीके से नहीं हो रहा है. ये एक मतलब कुछ हद तक तो ये रीज़न ठीक भी था, परंतु अंग्रेज़ों की इसकी पीछे की मंशा कुछ और थी. उनका उद्देश्य बेसिकली ये था कि बंगाल को वीक कर देना. वीक क्यों कर देना? क्योंकि बंगाल उस समय 1905 के आसपास, जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद बंगाल जो है भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र बन गया था. ठीक है, और फिर इसलिए अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए. ठीक है, तो बंगाल विभाजन के तहत अंग्रेजों की क्या रणनीति थी कि बंगाल विभाजन के तहत उन्होंने क्या किया, बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया. दो तरह से कौन कौन से? एक उन्होंने विभाजित किया भाषा के आधार पर, और दूसरा विभाजन उन्होंने किया धर्म के आधार पर. भाषा के आधार पर कैसे विभाजन किया? उन्होंने क्या किया, बंगाली भाषाभाषी को बंगाल में ही अल्पसंख्यक बना दिया. कैसे? क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि 3,70,00,000 लोग हिंदी या उड़िया बोलते थे. तो बंगाली लोग अपने ही बंगाल में क्या हो गए थे, अल्पसंख्यक हो गए थे. दूसरा, धर्म के आधार पे कैसे उन्होंने किया? धर्म के आधार पे क्या किया उन्होंने कि जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र बना दिया गया, और जो पूर्व बंगाल था आपका उसको मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बना दिया. ठीक है, और कर्जन ने तो इतना तक कहा कि जो ढाका है वो नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बन सकता है. ठीक है, और उसने कहा कि इससे मुस्लिमों में एकता बढ़ेगी, और जो उस टाइम मुगल शासकों के समय से पाई जाती थी. तो इससे हम समझ सकते हैं कि बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था उसका क्या रीज़न था. उसका रीज़न सिर्फ यही था कि भारत में जो है, या बंगाल में भारतीय राष्ट्रवाद को कम करने के लिए, और दूसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहा. ऑल राइट, अब जब ये सब हो गया, बंगाल विभाजन का घोषणा होगी 1903 में सॉरी, तो उग्रवादियों का इसके अगेंस्ट क्या रिस्पांस था? उदारवादियों के की तरफ से इसका क्या रिस्पांस रहा? उस टाइम मुख्य उदारवादी थे बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, के मित्रा जी और पृथ्वीचंद्र राय. ये लोग मुख्य उदारवादी थे. तो इन्होंने प्रार्थनाएं की, प्रार्थना पत्र दिए अंग्रेजी सरकार को, सभाएं की. ठीक है, और इन्होंने कई जर्नल्स में जैसे हितवादी, संजीवनी, बंगाली पत्रों के माध्यम से भी बंगाल का क्या किया, विरोध किया विभाजन का, है ना. परंतु अंग्रेज तो दमन का सहारा ले रही थी अंग्रेज सरकार. तो अंग्रेज ने फाइनली क्या किया, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी. ठीक है, और फिर
16 अक्टूबर 1905 को, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने विधिवत रूप से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगर घोषणा पूछी जाए आपसे कि ऑफिशियल घोषणा कब की गई थी, तो जुलाई 1905 में। तो जब 16 अक्टूबर को 1905 को घोषणा हो गई, तो इस दिन को जो है आंदोलनकारियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया, है ना। लोगों ने क्या किया, व्रत रखे, गंगा में स्नान किया और नंगे पांव पदयात्रा करते हुए वंदे मातरम गाया। ठीक है। अब बंगाल जो ये आंदोलन था, स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन था, इसकी एक मुख्य बात ये थी कि इसमें जो है दोनों भागों के लोगों ने, यानी हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर इसका विरोध किया है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस आंदोलन का, है ना। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ ये इसका जो विरोध था वो सिर्फ बंगाल में ही लिमिटेड था। इसका विरोध जो है पूना और बम्बई में इसका इस आंदोलन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। जबकि पंजाब में आपके लाला लाजपत राय लीडर थे इसके, उनके साथ अजीत सिंह भी थे। दिल्ली में आपके मैं बात करूं तो सैयद हैदर रजा जी इसके नेतृत्व करता थे, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई इसके नेतृत्व करता थे, है ना। अब हम देखते हैं कि इस समय कांग्रेस की क्या स्थिति थी। कांग्रेस उस टाइम नया नया बना था, 1885 में जैसे कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो 1905 का जो जैसे कांग्रेस की एनुअल सत्र होता था, वार्षिक सत्र होता था, तो 1905 का जो सत्र था वो बनारस में हुआ, और उसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने, है ना। तो उसमें सत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि कर्जन की जो ये नीतियां थी, इनको प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। एक तो इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया, और दूसरा क्या पारित किया कि बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देगा। कांग्रेस ने ये दो अपने प्रपोजल्स 1905 के कांग्रेस सत्र में ये दो प्रपोजल पारित किए थे। ठीक है। अब इस सब में ये हमने जैसे उदारवादियों की नीतियां देखी बंगाल विभाजन के विरोध में, तो हम उग्रवादियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो उग्रवादी आपके उस टाइम उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे, उनमें मेन थे आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ठीक है। अब ये लोग चाहते थे कि बंगाल विभाजन जो है सिर्फ जो है बंगाल में ही नहीं लिमिटेड रहे, बल्कि पूरे भारत में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, और इसको और आगे लेके जाके पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। ठीक है। परंतु जो नरमपंथी थे, कांग्रेस के नरमपंथी दल थे, वो चाहते थे कि बंगाल के बाहर जो है इसको ना लेके जाया गया। ठीक है। और फिर क्या होता है, 1906 में अगेन फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एनुअल सत्र होता है। तो 1906 का जो एनुअल सत्र था वो आपका कलकत्ता में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 1906 के सत्र में क्या किया गया, कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशकों की तरह स्वशासन या स्वराज की प्राप्ति है। तो इस सेशन में ये बात सामने निकल के आई कि स्वराज सबसे पहली बार किस टाइम यूज़ किया गया, तो 1906 में यूज़ किया गया था, है ना। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों गुटों में यानी नरम दल और गरम दल, यानी उदारवादी राष्ट्रवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों में, नरम दल और गरम दल दोनों में क्या हुआ, मतभेद बढ़ने लग गए। जिससे फाइनली हम देखते हैं कि 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, वहाँ पे कांग्रेस में विभाजन देखने को मिलता है। और फिर इस विभाजन से स्वदेशी आंदोलन भी प्रभावित होता है, और जो उस टाइम और आंदोलन चल रहे थे उन पे भी इनका गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट या कुछ हिस्ट्री देखी रिलेटेड टू दी दिस बंगाल विभाजन आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।